آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ شہر میں موجود 75 بوسیدہ عمارتوں سے عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے میونسپل انتظامیہ نے شروع کی ان خستہ حال عمارتوں کو ہٹانے کے لیے خصوصی مہم۔ آج ہٹائی گئی رنگریز گلی علاقے سے 2 بوسیدہ عمارتیں۔ نومولود بچوں کے لیے ماں کا دودھ سب سے زیادہ ہوتا ہے صحت بخش۔ دودھ پلانے کے موضوع پر نرسنگ اسٹاف کی تربیت کے لیے خصوصی ورکشاپ منعقد، ماہرین نے کی ان کی رہنمائی۔ نائب وزیر اعلیٰ سنیترا پوار سے متعلق کانگریس پارٹی کے ریاستی صدر کے متنازعہ بیان پر NCP کے عہدیداران و ورکرز میں بڑھنے لگا ہے غصہ۔ جالنہ شہر میں پارٹی ورکرز نے کیا احتجاج اور برسائے ہرش وردھن سپکاڑ کی تصویر پر جوتے۔ اور جائکواڑی ڈیم میں پانی کے ذخیرے میں ہو رہا ہے مسلسل اضافہ۔ گزشتہ شام تک ذخیرہ ہو گیا 90%۔ منگل کی شام ڈیم کے 18 دروازے کھول دیے گئے آدھا فٹ۔ تالاب کے اطراف رہنے والوں سے چوکس رہنے کی گئی اپیل۔ خبریں تفصیل سے۔ عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے میونسپل انتظامیہ نے شہر میں موجود خستہ حال عمارتوں کے خلاف کارروائی کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ اسی ضمن میں آج رنگریز گلی علاقے میں موجود 2 80 سالہ پرانی عمارتیں منہدم کر دی گئیں۔ ناظرین، شہر میں اس وقت تقریباً 72 عمارتیں انتہائی خستہ حال قرار دی جا چکی ہیں، جو تیز بارش، آندھی یا کسی بھی حادثاتی صورتحال میں اچانک منہدم ہو کر راہگیروں اور اطراف کے مکینوں کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہیں۔ میونسپل کمشنر امول ایڈگے کی ہدایت پر ان تمام عمارتوں کے مالکان کو پہلے ہی نوٹسز جاری کر دی گئی ہیں اور انہیں ان مخدوش عمارتوں کو محفوظ طریقے سے خود منہدم کرنے کی مہلت دی گئی تھی، مگر متعدد مالکان کی جانب سے نوٹس کو نظر انداز کیے جانے کے بعد میونسپل انتظامیہ نے براہ راست کارروائی شروع کر دی ہے۔ آج غیر قانونی تجاوزات ہٹاؤ دستے کے سربراہ سنتوش واہولے کی نگرانی میں اسپیشل آفیسر سنجے سرڑکر، ڈپٹی میونسپل کمشنر نند کشور بھومبے، وارڈ آفیسر لتا پجاری، بلڈنگ انسپکٹر رویندر دیسائی اور دیگر عملہ رنگریز گلی پہنچا، جہاں امرت بھاکرے اور صدیق احمد کی تقریباً 80 سال پرانی انتہائی مخدوش عمارتوں کو حفاظتی اقدامات کے ساتھ منہدم کر دیا گیا۔ میونسپل انتظامیہ نے ایک بار پھر خستہ حال عمارتوں کے مالکان کو انتباہ دیا ہے کہ وہ نوٹسز پر فوری عمل کریں۔ بصورت دیگر عوامی سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسی تمام خطرناک عمارتوں کو میونسپل کارپوریشن خود منہدم کرے گی اور اس کی تمام ذمہ داری متعلقہ مالکان پر عائد ہوگی۔ انہدامی کارروائی مکمل ہونے کے بعد سنتوش واہولے نے وہاں جا کر موقع کا جائزہ لیا اور میڈیا سے بات کی۔ آج جو ہے تو اور کل جو کارروائی ہونے والی ہے سر، یہ بہت بڑی ہے ایسا لگتا ہے سر، اور یہاں پر کئی بلڈنگیں جو ہے تو ڈیمیج کی استھتی میں اور کچھ بھی ہو سکتا ہے ابھی بارش کے دن میں سر، اس کے اوپر کیا کہیں گے سر؟ نہیں، اس کے پہلے ہی ہم نے ماہ مئی میں سبھی لوگوں کو نوٹسز دیے ہیں۔ اس کے پہلے بھی ہم نے ان کو آگاہ کیا تھا کہ جو اسٹرکچرل اسٹیبلٹی سرٹیفکیٹس نہیں ہیں، جو بہت سالوں سے بنی ہوئی ہے مگر آج زرزر حالت میں ہے، اگر آج کے اس میں اگر ہم اس کو نہیں گرائیں گے تو بارش کے موسم میں یہ بلڈنگ گر کر کوئی جان و مال کا بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم آج ان کو سب کو، جو نوٹس کا پیریڈ ختم ہو چکا ہے، ان کو پرسنل ریکویسٹ کرنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ وہ نکال لیجئے خود کے ہاتھ سے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارا مال اس میں ہے، تو وہ مال کا بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے، ان کے کاروبار کا بھی نقصان ہونا نہیں چاہیے۔ اس لیے ہم ان کو آج ونتی کرنے کے لیے آئے ہیں اور ان کو بولا ہے کہ کل ہم 11 بجے سے کارروائی شروع کرنے والے ہیں۔ آج ہی انہوں کا جو بھی سامان ہے، جو بھی چیزیں ہیں، AC ہو، ریفریجریٹر ہو، باقی جو چیزیں ہیں، وہ نکال کے اپنا نقصان کم سے کم کریں، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھیونڈی میں جو پچھلے کچھ دنوں پہلے ایک بڑا حادثہ ہوا تھا اور 10 لوگوں کی اس میں مرتیو ہو گئی ہے، تو ایسی ہی ڈیلیبیٹیڈ بلڈنگس وہ تھی۔ تو ہم ابھی شہر کے جو جنے شہر میں جو پرٹیکولر جو ایریاز ہے، اس میں ہمارے پاس 42 کی یادیں آ چکی ہیں، اس میں سے 5 ہم نے آلریڈی توڑے الگ الگ زون کے۔ کل اس میں بہت بڑی 10 کے قریباً ہم توڑنے والے ہیں، تو اس میں
ये जो एरिया है जोन 1 के अंदर का आने वाला, इसमें से 10 बिल्डिंग का नाम डेमोलिश करना है। सर ये टोटल शहर के अंदर चलने वाला है सर, ये जो मुहिम चलने वाली है सर? आप ये बात जान लीजिए कि बहुत सारे जो ओल्ड स्ट्रक्चर्स जी। है वो जोन 1, 2 और 3 में है। 99% जो ये 3 जोन में है, जी। क्योंकि ये शहर का पुराना हिस्सा है, ओल्ड सिटी है। तो ओल्ड सिटी होने के कारण यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर पुराने जो स्ट्रक्चर्स है वो खड़े हैं, जो आज धोखादायक स्थिति में आ चुके हैं। इसलिए हम उसको कॉन्सनट्रेट कर रहे हैं और बाकी की जो स्ट्रक्चर शहर के और इलाकों में रहेंगे वहाँ पे जल्द यही कार्रवाई होगी। जनता से आप क्या आह्वान करेंगे? जनता से क्या आह्वान करेंगे? आह्वान तो यही करना चाहते हैं कि आपका और आपके पास आने वाले ग्राहक जो भी है उनके जानो माल का अभिनय करिए। सिर्फ व्यवसाय करना ही नहीं, वो व्यवसाय में सुरक्षितता होना भी ज़रूरी है। आज के दिन में अगर कोई हादसा हो चुका है तो ये हादसे के लिए वो भी जवाबदार रहेगी और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बोल के जो यहाँ के ऑफिसर है वो भी उसके लिए जवाबदार रहेंगे। सर ये आज जितने लोगों को वार्निंग दी है आपने, तो ये कल जो है तो पूरा जो काम हो जाएगा? अभी अगर नहीं वो उन्होंने निकाला उसको, तो जो स्थिति में है वो स्थिति में हम उनको गिराने वाले हैं, चाहे उनका जितना नुकसान हो होगा। वो उसके Thank खुद you. जिम्मेदार। कहाँ हो रही है? संभाजीनगर, छत्रपति संभाजीनगर में बारिश शुरू हो गई तो महानगर पालिका आयुक्त साहब ने जो निर्देश दिए हुए थे कि शहर में जो बिल्डिंग्स है, जो डेंजरस बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग्स है, उनको वार्ड ऑफिस के तहत सब 4-4 साल से 5-5 साल से वो पुरानी बिल्डिंग्स है जो डेंजरस है गिराने के लिए, खुद निकालने के लिए नोटिस ऑलरेडी दी हुई है। 2 महीने पहले भी ये जो बिल्डिंग है अभी जो सिटी चौक रंगार गली में आप जो देख रहे हैं, ये जो बिल्डिंग है पुरानी बिल्डिंग, तो हकरे और गुलाम साजिद ये दोनों की बिल्डिंग्स है, उनको 2 महीने पहले भी इतला कर दी थी और नोटिस दी थी कि आप ये खुद निकाल लो। शहर में जितने डेंजरस बिल्डिंग है, पुराने बिल्डिंग है, निकालने की नोटिस महानगर पालिका प्रशासन ने दी हुई है, लेकिन 1 महीना होने के बाद भी इन लोगों ने ये बिल्डिंग नहीं निकाली और अभी बारिश शुरू हो चुकी है। और ये एक्चुअली यहाँ पे जो दुकान है, यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, खुद रहने वाले लोग हैं और आसपास के लोग हैं, और जो आने जाने वाले लोग हैं क्योंकि मार्केट एरिया है, वहाँ पे डेंजरस हो सकती थी बारिश में इसमें। तो माननीय आयुक्त एडीजे साहब जो है हमारे, उन्होंने आदेश दे दिया कि शहर में जितने भी ये डेंजरस बिल्डिंग से, पुराने बिल्डिंग से जिनको नोटिस दे चुके हैं, उन्होंने अगर निकाले नहीं नोटिस पीरियड में तो गिराना है। तो आज सिटी चौक में ये बिल्डिंग गिराने की जो है, ये वार्ड ऑफिस एक जो है वार्ड ऑफिसर सहायक आयुक्त अतिक्रमण के साथ में है, तो ये धोखादायक जो भी बिल्डिंग्स है वो निकालने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। सर ये अंदाज़ा कितने साल पुरानी बिल्डिंग थी? ये बिल्डिंग को 4-5 बार नोटिस दिए, 5 साल से नोटिस दी हुई है। वार्ड ऑफिसर ने नोटिस देने के बाद 30 साल में 2 बार नोटिस दिए हुए। ये अंदाज़ा 80 से 100 साल पुरानी बिल्डिंग है ऐसा जो दिखता है, क्योंकि इन लोगों से जब पूछा तो उन्होंने बताया उनको हर साल भी नोटिस दी हुई है। इस बार भी नोटिस दी थी, निकालेंगे, इसीलिए प्रशासन को ये बिल्डिंग निकालना। सर आगे भी इस तरह कार्रवाई रहेगी शहर में या फिर? म्यूनसिपल कमिश्नर साहब ने ऑलरेडी ये सूचना सब वार्ड ऑफिसरों को, सब ये जो पुराने बिल्डिंग्स हैं जो धोखादायक है, डेंजरस बिल्डिंग है, उनको ऑलरेडी नोटिस दे चुके हैं। ऐसी जो भी शहर में बिल्डिंग है जो बारिश में प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, डेंजरस हो सकते हैं, ये बिल्डिंग्स गिराने की कार्रवाई अभी शुरू हो चुकी है। माननीय कमिश्नर अमोल एडीजे साहब ने सब वार्ड ऑफिसरों को, सब डिपार्टमेंट को ये ऑलरेडी सूचना दी है कि धोखादायक इमारत ये बारिश में निकलने का प्रोसीजर शुरू है। आपका पूरा नाम और पद सर? मैं नंदकिशोर बोम्बे, इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट का इंचार्ज, और मेरे साथ ये इसमें ये काम चल रहे वार्ड ऑफिस से के पुजारी मैडम, असिस्टेंट कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर सुबेड़पल्ली इंक्रोचमेंट के साथ में, और हमारी कॉर्पोरेशन की पूरी टीम साथ में। अतिक्रमण नियंत्रण के जो प्रमुख है कॉर्पोरेशन के गौड़े साहब, उनके गाइडेंस में ये प्रोसीजर चालू है। अभी पूरे शहर में ये बिल्डिंग निकालना शुरू है। थैंक यू सर। मिटमिटा पड़ेगांव रोड पर एक कदीम बड़ा दरख्त सूख चुका है जो किसी भी वक्त गिरने का खदशा बढ़ गया है, लिहाजा इस दरख्त को फौरी तौर पर हटा लिया जाए। ये मतालबा मकामी साकिनान ने म्यूनसिपल इंतज़ामिया और PWD से किया है। मिटमिटा और पड़ेगांव के साकिनान ने महकमा तामीरात आम्मा यानी PWD और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के शोबे बागात से मतालबा किया है कि किसी बड़े हादसे से कबल इस ख़तरनाक दरख्त को फौरी तौर पर हटा दिया जाए। ज़राए के मुताबिक इस दरख्त की ऊंचाई तकरीबन 50 से 60 फीट है और ये काफ़ी अरसे से मुकम्मल तौर पर सूख चुका है। दरख्त इंतहाई बोसीदा होने के बाद किसी भी लम्हे सड़क पर गिर सकता है, जिससे संगीन हादसात पेश आने और जानी नुकसान का अंदेशा है। ये शाहराह मुंबई नासिक के रूट से मुंसलिक होने के साथ साथ
ایلورا، دولت اور خلدآباد جیسے اہم سیاحتی مقامات کی طرف جانے والی اہم سڑک ہے جہاں دن بھر گاڑیوں کی مسلسل آمد و رفت رہتی ہے۔ ایسے میں اگر یہ بلند و بالا سوکھا درخت اچانک گر پڑا تو بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے۔ واضح رہے کہ پڑےگاؤں مٹمٹا شاہراہ پہلے ہی مختلف مسائل سے دوچار ہے اور اس سڑک پر آئے دن حادثات پیش آتے رہتے ہیں۔ اس صورتحال میں گاڑی چلانے والے خوف کے عالم میں سفر کرنے پر مجبور ہیں۔ شہریان نے متعلقہ محکمے سے مطالبہ کیا ہے کہ عوام کی جان و مال کے تحفظ کے پیش نظر اس خطرناک درخت کو فوری طور پر ہٹا لیا جائے۔ اورنگ آباد سمیت علاقۂ مرحوبہ بھر میں طبی سہولتیں بہتر کی جائیں، یہ مطالبہ ایم پی سندیپان بھومرے پاٹل نے دہلی میں منعقدہ آیوشمان وزارت کی میٹنگ میں مرکزی وزیر صحت سے کیا۔ ذرائع سے موصولہ اطلاع کے مطابق نئی دہلی کے کرتویہ بھون میں مرکزی وزیر مملکت برائے آیوش، آزادانہ چارج اور صحت و خاندانی بہبود پرتاپ راؤ جادھو کی صدارت میں منعقدہ جائزہ میٹنگ میں رکن پارلیمنٹ سندیپان بھومرے پاٹل نے اورنگ آباد اور مراٹھواڑہ کو درپیش صحت کے اہم مسائل مؤثر انداز میں اٹھائے۔ سندیپان بھومرے پاٹل نے مطالبہ کیا کہ آیوشمان بھارت، پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا سمیت مرکزی حکومت کی تمام صحت اسکیموں کے فوائد مستحق مریضوں کو بغیر کسی تاخیر اور غیر ضروری کاغذی کارروائیوں کے کی جائے۔ بھومرے نے مزید کہا کہ اورنگ آباد میں جدید سہولتوں سے لیس آیوش اسپتال قائم کیے جائیں اور جدید طبی نظام کے درمیان بہتر ہم آہنگی پیدا کی جائے۔ دیہی اور دور دراز علاقوں تک صحت خدمات کو مؤثر انداز میں پہنچایا جائے۔ مراٹھواڑہ میں مطلوبہ طبی عملہ، جدید طبی آلات فراہم کیے جائیں اور مرکزی حکومت کی صحت اسکیموں پر مؤثر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ مرکزی وزیر مملکت پرتاپ راؤ جادھو نے میٹنگ میں رکن پارلیمنٹ کی جانب سے پیش کیے گئے مطالبات کا نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ افسران کو ضروری کارروائی کی ہدایت دی۔ اس میٹنگ میں مراٹھواڑہ کے تمام اراکین پارلیمنٹ کے علاوہ وزارت آیوش اور وزارت صحت کے سینئر افسران بھی موجود تھے۔ نومولود بچوں کے لیے ماں کا دودھ سب سے زیادہ صحت افزا ہوتا ہے، لہذا اس موضوع پر نرسنگ اسٹاف کی رہنمائی کے لیے ایک تربیتی ورکشاپ گزشتہ روز IMA ہال میں رکھا گیا۔ ناظرین، ہر سال 1 اگست سے 7 اگست تک عالمی ہفتہ رضاعت یعنی ورلڈ بریسٹ فیڈنگ ویک منایا جاتا ہے۔ اس سال کا عالمی شعار پائیدار زندگی کے آغاز کے لیے ماں کا دودھ، اسے مزید مضبوط بنائے رکھا گیا ہے۔ اسی سلسلے میں میونسپل کارپوریشن کی میڈیکل ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر اجولا بھامرے کے تصور کے تحت 4 اگست 2026 کو میونسپل ہیلتھ سینٹرز کے تمام نرسنگ اسٹاف کے لیے IMA ہال میں سہ پہر 3 بجے سے 5 بجے تک دودھ پلانے کے موضوع پر خصوصی تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں 151 نرسنگ اہلکاروں نے شرکت کی۔ ورکشاپ کا موضوع فار سکسیسفل بریسٹ فیڈنگ کیچ تھیم ارلی تھا۔ مقررین نے بتایا کہ پیدائش کے بعد پہلے 1 گھنٹے کے اندر نومولود کو ماں کا دودھ پلانا انتہائی ضروری ہے، لیکن فی الحال اس کا تناسب صرف 41% ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ حاملہ خواتین کو دوران حمل ہی دودھ پلانے کے طریقہ کار، اس کی اہمیت اور فوائد سے مکمل طور پر آگاہ کر دیا جائے تاکہ وہ ذہنی طور پر پہلے ہی تیار ہو سکیں۔ اسی تصور کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس عنوان سے اجاگر کیا گیا۔ ورکشاپ میں ماہر اطفال اور لیکٹیشین کنسلٹنٹ ڈاکٹر روشنی سودھی نے شرکاء کی رہنمائی کرتے ہوئے بتایا کہ ANC کلینک میں حاملہ خواتین کی مؤثر رہنمائی کس طرح کی جائے، پیدائش کے فوراً بعد بچے کو صحیح انداز میں ماں کی چھاتی سے کیسے لگایا جائے، بیبی کرال کی اہمیت کیا ہے، دودھ پلانے والی ماں کی غذا کیسی ہونی چاہیے اور دیگر موضوعات پر ان کی کاؤنسلنگ کس انداز میں کی جائے۔ انہوں نے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن اور ویڈیو کے ذریعے موضوع کو نہایت آسان اور عملی انداز میں سمجھایا اور نرسنگ اسٹاف کے تمام سوالات کے تسلی بخش جوابات بھی دیے۔ اس موقع پر اعلان کیا گیا کہ عالمی ہفتہ رضاعت کے دوران میونسپل کارپوریشن کے تمام صحت مراکز میں حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی ماؤں کو رضاعت کے حوالے سے خصوصی رہنمائی اور مشاورت فراہم کی جائے گی۔ یہ مہم صرف 1 ہفتے تک محدود نہیں رہے گی بلکہ آئندہ بھی مستقل بنیادوں پر جاری رکھی جائے گی تاکہ معاشرے میں ماں کے دودھ کی اہمیت کے بارے میں بیداری پیدا ہو اور ہر نومولود کو زندگی کے آغاز ہی سے بہترین غذائیت فراہم کی جا سکے۔
वर्कशॉप की कामयाबी के लिए डॉक्टर मेघा जोगदंड, बंसीलाल नगर अस्पताल के अमले और म्यूनसिपल हेडक्वार्टर के मुलाजमीन ने खुसूसी ताउन और मेहनत की। नाजरीन, शहरियान का कहना है कि म्यूनसिपल इंतज़ामिया और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस मौजू पर काफ़ी हद तक बेहतरीन काम कर रही है, जो काबिल सताइश है। लेकिन उन हालात का क्या जब ज़चगी के बाद माहिर अतफाल मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के नाम पर नौमौलूद बच्चों को माँ से दूर रखकर इंटेंसिव केयर यूनिट्स में दाखिल कर लेते हैं। इस पर भी हेल्थ इंतज़ामिया को तवज्जो देने की ज़रूरत है। औरंगाबाद ज़िला परिषद दफ्तर की सीईओ के दफ्तर में ही कुछ चूहे 2 रोज़ कबल मर गए और इन मुर्दा चूहों की वजह से यहाँ ताफुन फूट पड़ा, जिसकी वजह से ज़िला परिषद के सफाई इंतज़ामात पर सवालिया निशान उठने लगे हैं। औरंगाबाद ज़िला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के दफ्तर में गुज़िश्ता 2 रोज़ से फैली हुई शदीद ताफुन ने मुलाजमीन और अफसरान को परेशान कर रखा था। इब्तिदा में बदबू की असल वजह मालूम न हो सकी, जिसके बाद दफ्तर के मुख्तलिफ हिस्सों का बारीक बीनी से मुआयना किया गया। बाद अज़ां एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की निगरानी में दफ्तर और अतराफ़ के इलाके की मुकम्मल तलाशी ली गई, जहां दफ्तर के फर्नीचर के पीछे मुर्दा चूहे पाए गए। फौरी तौर पर उन्हें हटा दिया गया, जिसके बाद पूरे दफ्तर को जरासीम कश अद्वियात के ज़रिए सैनिटाइज़ किया गया और बदबू पर काबू पाया गया। इस वाक़े ने ज़िला परिषद के सफाई और देखभाल के निज़ाम पर सवालिया निशान लगा दिया है। शहरियों और मुलाजमीन की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात से बचने के लिए दफातर में बाकायदा सफाई, मुआयना और हिफ़्ज़ान सेहत के इंतज़ामात को मज़ीद मुअस्सर बनाया जाए। ज़िला जालना में एक सड़क की तामीर मुकम्मल होने से पहले ही उसमें बड़े बड़े गड्ढे पड़ने लगे हैं, जिस पर साबिक़ एमएलए कैलाश गोरंटियाल सख्त नाराज़ हो उठे और उन्होंने मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से फौरी तवज्जो देने का मुतालबा किया है। ज़राए का कहना है कि जालना शहर में राजूर चौक फ्लाईओवर से ढोलेश्वर जाने वाली सीमेंट सड़क की तामीर PWD की निगरानी में जारी है। ताहम बारिश के बाद सड़क के मेयार पर संगीन सवालात उठने लगे हैं। इल्ज़ाम है कि तामीराती काम मुकम्मल होने से पहले ही कई मकामात पर सीमेंट की सतह से खड़ी बाहर आ गई है और सड़क पर गड्ढे बनना शुरू हो गए हैं। अभी सड़क पर मुकम्मल ट्रैफिक भी नहीं शुरू हुआ है, इसके बावजूद इसकी यह हालत तामीराती मेयार पर सवालिया निशान खड़ा कर रही है। साबिक़ रुकन असम्बली कैलाश गोरंटियाल ने मौके का मुआयना करने के बाद तामीराती काम पर शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने म्यूनसिपल कमिश्नर से मुलाकात करके मामले पर तफसीली गुफ्तगू की और मुताल्लिक़ा ठेकेदार और ज़िम्मेदार अफसरान के किरदार की मुकम्मल जाँच का मुतालबा किया। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि इस मुबैना नाक़िस तामीर का मामला मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी के सामने भी उठाया जाएगा, ताकि इसकी आला सतह पर तहक़ीक़ात करवाई जा सके। इस वाक़े के बाद अवाम में ये सवालात उठ रहे हैं कि क्या तरक्याती मंसूबों के नाम पर सरकारी फ़ंड्स का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या कमीशन खोरी की वजह से गैर मेयारी तामीराती काम किए जा रहे हैं? शहरियान ने मुतालबा किया है कि इस सड़क का फौरी तकनीकी ऑडिट करवाया जाए और अगर बेज़ाब्तगियाँ साबित हो जाती हों तो ज़िम्मेदार ठेकेदार और अफसरान के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। पासून तर ढवलेश्वर आणि राजूर चौफुली तक मागच्या महिन्यात एक रोडचा उद्घाटन झाला आणि त्या रोड आता परिपूर्ण झाले नाही, पण या पहिल्या पाऊसमध्ये रोडवर मोठे मोठे गड्डे पडलेले, त्याबद्दल मी कमिशनरला भेटलो, पण त्यामध्ये असं आहे की ते रोड नगर परिषद महानगरपालिका हद्दीचा आहे, पण त्यावेळचे कमिशनराने त्याला NOC PWD दिलेली, मग तो प्रॉपर्टी काम PWD करतायत, आम्ही त्याची चौकशी करणार आहे, कारण हे पैसे नितीन गडकरी साहेबांना पाठविलेले आहेत आणि मी स्वतः हे सर्व प्रकरण नितीन गडकरीच्या कानावर टाकणार आहे। मिटमिटा में कायम किए जा रहे सफारी पार्क को भगवान गौतम बुद्ध का नाम दिया जाए, ये मुतालबा बहुजन समाज पार्टी के जिम्मेदारान ने म्यूनसिपल कमिश्नर से किया है। मेमोरेंडम के ज़रिए कहा गया है कि औरंगाबाद में सेंट्रल बस स्टैंड के करीब वाक़ तारीख़ी सिद्धार्थ उद्यान दुनिया भर में इसी नाम से मारूफ़ है। इस तारीख़ी शनाख्त और रिवायत को बरकरार रखते हुए नए सफारी पार्क को भी इसी निस्बत से तथाकथ भगवान सिद्धार्थ गौतम बुद्ध सफारी पार्क का नाम दिया जाना चाहिए। मेमोरेंडम में मजीद कहा गया है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने सिद्धार्थ उद्यान की तरक्की के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए, ताहम जगह की किल्लत के बायस इस मंसूबे को मिटमिटा पड़े गाँव मुंतकिल किया गया, जहाँ इस वक्त जदीद और बैनुल अक़वामी मेयार के सफारी पार्क यानी चिड़ियाघर की तामीर तेज़ी से जारी है।
बहुजन समाज पार्टी का मुतालबा है कि इस मकाम की शनाख्त साबिक़ा नाम से ही बरकरार रखी जाए और इसके नाम में कोई तब्दीली न की जाए। वफ़द ने अपने मुतालबे के हक़ में कहा कि तथागत भगवान सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने पूरी दुनिया को तमाम जानदारों के लिए रहम, करम, अदम तशद्दुद और उख़ुवत का पैगाम दिया। जानवरों का तहफ़्फ़ुज़, माहौलियात का तवाज़ुन और हर ज़ी रूह के साथ हमदर्दी उनकी तालीमात का बुनियादी हिस्सा है। इसलिए चूँकि सफारी पार्क और चिड़ियाघर सिर्फ सयाहत का मरकज़ नहीं बल्कि जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ और अफजाइश का भी अहम इदारा है, इसलिए इसका नाम तथागत भगवान गौतम बुद्ध के नाम पर रखना नहायत मौज़ू और बामानी होगा। बहुजन समाज पार्टी ने इंतज़ामिया और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जनरल बॉडी से मुतालबा किया है कि इस तजवीज़ पर हमदर्दाना गौर करते हुए ज़रूरी इंतज़ामी कार्रवाई की जाए और जनरल बॉडी में करारदाद मंजूर करके इस मुतालबे को कबूल किया जाए। इस मौके पर बहुजन समाज पार्टी के ज़िला सदर विजय भाऊ बचके, ज़िला नायब सदर अमोल पवार, ज़िला खजांची विष्णु वाघमारे, जनरल सेक्रेटरी राघोजी पंडगे, वस्ती असम्बली हलके के सदर राजगीरे, वस्ती असम्बली हलके के जनरल सेक्रेटरी राहुल साड़वे, सुनील नौतुरे समेत दीगर ओहदेदारान और कारकुनान मौजूद थे। आज बहुजन समाज पार्टी छत्रपती संभाजीनगरच्या वतीने आमचे सहकारी अमोल पवार यांच्या विचारातून जे पडेगाव मिटमिटा प्रभागामध्ये सफारी पार्क प्राणी संग्रहालय होत आहे त्याला सिद्धार्थ भगवान गौतम बुद्ध असे नाव देण्यात यावे ही आमची प्रमुख मागणीसाठी आज आम्ही छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका आयुक्त यांना भेट घेतलेली आहे आणि ते याबद्दल आम्हाला पॉझिटिव्ह दिसले। त्या संदर्भात जीबीमध्ये ठराव घेऊ असं त्यांनी आम्हाला शब्द दिलेला आहे आणि जोपर्यंत सफारी पार्कला गौतम बुद्ध नाव भेटणार नाही तोपर्यंत बहुजन समाज पार्टीचा लढा या गोष्टीसाठी चालू राहणार आहे आणि मी खांद्याला खांदा लावून अमोलजी पवार यांच्या सोबत राहणार आहे। नायब वज़ीर आला सुनीत्रा पवार से मुताल्लिक़ कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर की जानिब से दिए गए मुतनाज़ा बयान की मजम्मत में जालना में एनसीपी अजीत पवार ग्रुप के ओहदेदारान व वर्कर्स ने शदीद एहतजाज किया और हर्षवर्धन सपकाड़ की तस्वीर पर जूते बरसाकर अपने गम गुस्से का इजहार किया। नायब वज़ीर आला सुनीत्रा पवार के बारे में कांग्रेस की जानिब से किए गए मुबैना काबिल एतराज़ बयान के बाद रियासत भर में सियासी तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है, जिसके असरात अब जालना में भी देखने को मिल रहे हैं। जालना में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी अजीत पवार ग्रुप के कारकुनान ने कांग्रेस के रियासती सदर हर्षवर्धन सपकाड़ के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान कारकुनान ने सपकाड़ की तस्वीर पर जूते मारकर अपने गम गुस्से का इजहार किया और उनके खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। इस मौके पर एनसीपी के ज़िला सदर अरविंद चौहान ने कांग्रेस को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि नायब वज़ीर आला सुनीत्रा पवार के बारे में इस्तेमाल की गई ज़बान इंतहाई काबिल मज़म्मत है और महाराष्ट्र की अवाम ऐसे बयानात हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने मुतालबा किया कि हर्षवर्धन सपकाड़ फौरी तौर पर अवामी सतह पर माफ़ी मांगे। बसूरत दीगर एनसीपी कारकुनान जालना में वाक़े कांग्रेस दफ्तर में दाखिल होकर शदीद एहतजाज करेंगे। इस एहतजाज के बाद जालना का सियासी माहौल मज़ीद गर्म हो गया है। अब सबकी नज़रें इस बात पर मरकूज़ हैं कि कांग्रेस इस मामले पर क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है और ये सियासी तनाज़ा आइंदा कैसा रुख इख्तियार करता है। काँग्रेस पक्षाचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील सपकाळ यांनी आमच्या नेत्या राष्ट्रवादीच्या उपमुख्यमंत्री पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री यांना गुंगी गुडिया म्हणून जे हिणवलं ते अतिशय घृणास्पद आहे। अजितदादा गेल्यानंतर तिसऱ्या दिवशी वहिनीसाहेब स्वतःचं दुःख विसरून त्या महाराष्ट्रातील जनतेसाठी आणि राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यासाठी उभ्या राहिल्या आणि अतिशय समर्थपणे आज तुम्ही कुठलाही कार्यक्रम पहा, अनेक ठिकाणी विकासाची कामं पहा, कालच्या बीड दौऱ्यातही पहा, सगळीकडे वहिनीसाहेब अतिशय चांगल्या पद्धतीने अजितदादासारखी पाहणी करून अधिकाऱ्यांना सूचना देत आहेत, चांगलं काम करतायत आणि कुठंतरी काँग्रेस पक्षाच्या पोटात यामुळे पोटशूळ उठलेला आहे। त्यामुळे काँग्रेस पक्ष वहिनीसाहेबावरती टीका करून स्वतःच हसं करून घेत आहे। हे निश्चित पद्धतीनं आम्ही सर्व राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते, महिला कार्यकर्त्या सर्वजण आम्ही हर्षवर्धन पाटील सपकाळ आणि काँग्रेस पक्षाचा धिक्कार करतो आणि हर्षवर्धन पाटलांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसची नव्हे तर सुनेत्रा वहिनीचीही माफी मागावी अशी आम्ही मागणी करीत आहोत। यापुढचं जर तसं झालं नाही तर या ठिकाणच्या काँग्रेस पक्षाच्या कार्यालयात घुसून आम्ही ही मागणी करू।
एवढंच या निमित्तानं सांगतो. क्लासिकल शतरंज के आलमी सतह के मुकाबलों में नन्हे खिलाड़ी वल्लभ ने अपनी गैरमामूली ज़हानत, सलाहियत और मेहनत का मुजाहरा करते हुए बेहतरीन खेल पेश किया और बासे फ़ख्र बन गया। नाज़रीन, क्लासिकल शतरंज में बैनुल अक़वामी दर्जा रेटिंग टाइटल हासिल करना एक आसान अमल नहीं बल्कि नहायत मुश्किल और मुसाबक़ती मरहला होता है। इसके लिए बैनुल अक़वामी मेयार के मजबूत और तजुर्बेकार खिलाड़ियों के खिलाफ मुसलसिल कामयाबी हासिल करना ज़रूरी होता है। क्लासिकल मुकाबलों में हर मैच की नोटेशन भी बाकायदगी से तहरीर करना लाजिम होता है। इन मुकाबलों में ऐसे खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं जो मुकम्मल तैयारी, गहरी हिकमत अमली और आला महारत के साथ मैदान में उतरते हैं। मज़ीद बरां खिलाड़ी को ओपन कैटेगरी में हर उम्र के मजबूत हरीफों के खिलाफ मुकाबला करना पड़ता है। खेल के दौरान गैर मामूली यकसुई, जहनी इस्तिकामत और सब्र दरकार होता है, क्योंकि एक मैच कई घंटों तक जारी रह सकता है। इसीलिए कम उम्री में क्लासिकल शतरंज में बैनुल अक़वामी मेयार का एजाज़ हासिल करना इंतहाई मुश्किल समझा जाता है। ताहम वल्लभ ने अपनी गैर मामूली सलाहियत और मेहनत व अज़्म के ज़रिए ये मुश्किल कारनामा अंजाम देकर सबके लिए फ़ख्र का बास बन गया। क्रिप्टो करेंसी में दोगुना मुनाफे का लालच देकर एक बुजुर्ग शख्स के साथ 14 लाख रुपयों की धोखाधड़ी का मामला शहर में मंजर आम पर आया है। स्वतंत्र सैनिक कॉलोनी के साकिन 69 साला सुभाष गंगाराम मानकर ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई कि किरण भरतराव खरात, जो कि सराफ नगर पुराना जालना के साकिन हैं, उन्होंने और उनके दोस्त शिवाजी राव पाथरीकर का एतमाद हासिल करते हुए एक कंपनी की क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी करने की तरगीब दी। मुलजिम ने एक साल में 2 करोड़ रुपये मुनाफा दिलाने का वादा करते हुए दोनों ही से मजमूई तौर पर 14 लाख रुपये सरमायाकारी के नाम पर वसूल कर लिए, लेकिन मुकर्ररा मुद्दत गुजरने के बावजूद न कोई मुनाफा दिया और न ही रकम वापस की, जिससे दोनों के साथ धोखाधड़ी हुई। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या 28 दिसंबर 2021 से जून 2026 के दरमियान स्वतंत्र सैनिक कॉलोनी इलाके में पेश आया। क्रांति चौक पुलिस ने किरण भरतराव खरात के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि मजीद तफ्तीश पुलिस सब इंस्पेक्टर पाटिल कर रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी की पहली बैनुल अक़वामी 2 रोज़ा मीटिंग पार्टी के बानी सदर अभिजीत दीपके की रिहाइशगाह में शुरू हो गई, जहां पार्टी के आइंदा लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ये इत्तला अभिजीत दीपके ने मीडिया को दी। नीट इम्तिहान के पेपर लीक मामले के बाद मुल्क भर में ज़ेर बहस आने वाले कॉकरोच जनता पार्टी की पहली बैनुल अक़वामी 2 रोज़ा मीटिंग औरंगाबाद के सिडको महानगर 1 इलाके में शुरू हो गई है। पार्टी के बानी सदर अभिजीत भगवान दीपके की रिहाइशगाह पर मुनक़्क़िद होने वाली इस मीटिंग में मुख्तलिफ़ रियासतों से पार्टी के ओहदेदार और तर्जुमान मंगल की रात ही पहुँच गए। इजलास में आइंदा अवामी तहरीकों, तंजीमी तोसी और पार्टी के नज़रियात व पॉलिसी पर तफसीली तबादला ख्याल किया जा रहा है। मीटिंग से पहले मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अभिजीत दीपके ने कहा कि पार्टी का मंशूर और पॉलिसी जल्द अवाम के सामने पेश की जाएगी। उन्होंने बताया कि बेरोज़गारी, महंगाई, तलबा के तहफ़्फ़ुज़, आइन के दिफा, माशी बहरान और दीगर अवामी मसाइल पर बड़े पैमाने पर तहरीकें चलाने की हिकमत अमली तैयार की जा रही है। उन्होंने झारखंड में जारी एहतजाजी तहरीक की हिमायत का भी ऐलान किया और कहा कि लाठीचार्ज से मुतासरा मुजाहिरीन को इंसाफ दिलाने के लिए हुकूमत से बातचीत की जाएगी। दीपके ने समाजी कारकुन सोनम वांगचुक को पार्टी का रहनुमा और रहबर भी करार दिया। इस दौरान नीट पेपर लीक मामले के बाद जहनी दबाव के बायस खुदकुशी करने वाले नांदेड़ के तालिबे इल्म सुशील घुगे की वालदा शीतल घुगे ने अभिजीत दीपके से मुलाकात करके इंसाफ का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत को पेपर लीक जैसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम करने चाहिए ताकि तलबा का मुस्तक़बिल महफूज रह सके। उन्होंने इस बात पर अफसोस भी ज़ाहिर किया कि अब तक किसी सरकारी अफसर ने उनके ख़ानदान से मुलाकात नहीं की। इस मीटिंग में मुख्तलिफ़ रियासतों से आए तलबा, वालदैन और शहरी भी अपने मामला से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात के साथ शरीक हुए और पार्टी ओहदेदारान से तबादला ख्याल किया। इसी वजह से CJP की इस पहली बैनुल अक़वामी मीटिंग पर रियासत समेत मुल्क भर की नजरें मरकूज हैं। काय आहे पूर्ण देशभरात आमचं संघटन कसं वाढवण्यात येईल त्यावर आम्ही चर्चा करणार आहे।
कारण की जंतर मंतरचं जे आंदोलन झालं त्याला देशभरातून समर्थन भेटलेलं होतं आणि इतक्या मोठ्या विजयानंतर आमच्या जबाबदारी सोबत लोकांच्या अपेक्षाही खूप वाढलेल्या आहेत. तर त्यासाठी पूर्ण देशभरात संघटन कसं आमचं वाढवण्यात येईल त्यावर आम्ही आता काही निर्णय करणार आहे, काही चर्चा करणार आहे आणि त्यासोबतच एकंदरीत पुढचा एक रफ रोड मॅप काय असला पाहिजे त्यावरही आम्ही चर्चा करू. ते सांगू आम्ही आता चर्चा करू, तेच डिस्कस करणार आहे आम्ही आणि उद्यापर्यंत आम्ही एक प्रेस ब्रीफिंग घेऊन सांगू की आमचा पुढचा रोडमॅप काय असणार आहे. नाही आम्ही त्यांच्याशी बोललोय, त्यांना आम्ही पूर्णपणे समर्थन दिलेलं आहे आणि आम्ही त्यांना सांगितलं की त्यांच्या आंदोलनाला मजबूत करण्यासाठी जे काही करता येईल ते आम्ही सगळंच करू आणि त्यांच्या जे काही डिमांड्स आहेत आम्ही पूर्णपणे त्यांचं समर्थन करतो. दॅट्स एक्झॅक्टली व्हॉट आय सेड इन मराठी, दॅट डेफिनेटली वी विल गो टू झारखंड and we stand with the students who are protesting there and we support their every demand. जायकवाड़ी तालाब में पानी का ज़ख़ीरा 90% हो जाने के सबब गुज़िश्ता मंगल की शाम डैम के 18 दरवाजे आधा फीट ऊंचे खोल दिए गए। ये इत्तला मुतल्लिक़ा शोबे से मौसूल हुई है। महकमा आपाशी से मौसूल इत्तला के मुताबिक जायकवाड़ी डैम में इस वक्त तकरीबन 90% पानी ज़ख़ीरा मौजूद है। कैचमेंट एरिया से मुसलसिल पानी की आमद को मद्देनज़र रखते हुए गुज़िश्ता शाम डैम के 18 गेट आधा फीट बुलंद करके दरियाए गोदावरी में 10,000 क्यूसेक्स की रफ्तार से पानी का अखराज शुरू कर दिया गया। महकमे ने वाज़ेह किया है कि बाएं इलाके से डैम में आने वाले पानी की मिक़दार के मुताबिक इस अखराज में ज़रूरत पड़ने पर इजाफ़ा या कमी की जा सकती है। ज़िला इंतज़ामिया ने आवाम से अपील की है कि वो किसी भी सूरत दरियाए गोदावरी के बहाव में दाखिल न हों और दरिया के किनारे आबाद देहात के मकीन मुकम्मल चौकसी इख्तियार करें ताकि किसी भी किस्म के जानी या माली नुकसान से बचाया जा सके। MGM अस्पताल के बाहर मामूली बात पर शुरू हुआ झगड़ा पुरतशद्दुद तसादुम में तब्दील हो गया, जिसमें 3 अफराद शदीद तौर पर ज़ख्मी होने की इत्तला है। पुलिस ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक शिकायत कुनिंदा काजी नोमान अहमद ने बताया कि यश जाजू की मोटरसाइकिल टक्कर के बाद झगड़ा हुआ, जो बाद में मारपीट में बदल गया। मुलजिम ने अपने अहल खाना और साथियों को बुलाकर शिकायत कुनिंदा और उसके अहल खाना पर लाठियों और लोहे की रॉड से हमला किया, जिससे 3 अफराद ज़ख्मी हो गए। पुलिस ने यश जाजू समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। खदीम जालना पुलिस ने चैन स्नैचिंग और लूट मार की वारदातों में मुलविस 2 अफराद को हिरासत में लिया है, जिनके कब्ज़े से 11,39,000 रुपयों का मसरूखा सामान जब्त कर लिया गया। खदीम जालना पुलिस स्टेशन की हुदूद में गुज़िश्ता कुछ अरसे से चैन स्नैचिंग और जबरी लूट मार की वारदातें पेश आ रही हैं। इन जराइम की रोकथाम और मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए ज़िला पुलिस सुपरिटेंडेंट तेगबीर सिंह सिंधु ने खुसूसी तफ्तीशी टीम तश्कील देकर फौरी कार्रवाई की हिदायत दी थी। इस हिदायत पर अमल करते हुए पुलिस टीम ने 2 मुश्तबा नौजवानों को हिरासत में लिया। दौरान तफ्तीश दोनों ने खदीम जालना पुलिस स्टेशन में दर्ज 5 चैन स्नैचिंग और 1 जबरी लूट समेत मजमूई तौर पर 6 वारदातों में मुलविस होने का एतराफ़ कर लिया। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्ज़े से 68.990 ग्राम वज़नी सोने के ज़ेवरात, 2 मोबाइल फ़ोन और वारदात में इस्तेमाल होने वाली बजाज डिस्कवर मोटरसाइकिल बरामद कर ली। बरामदशुदा माल की मजमूई मालियत 11,39,300 रुपये बताई गई है। इस मामले में आदित्य सुरेश पाखरे और अरुण दगड़ू वागचोरे दोनों, जो कि चंदन झीरा के साकिनान हैं, जालना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों मुलजिमीन इस वक्त पुलिस रिमांड में हैं, जबकि पुलिस इस बात की भी तफ्तीश कर रही है कि आया उन्होंने दीगर पुलिस स्टेशन की हदूद में भी इसी नौइयत की वारदातें अंजाम दी हैं या नहीं। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर में मौजूद 75 बोसीदा इमारतों से अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने शुरू की इन खस्ताहाल इमारतों को हटाने के लिए खुसूसी मुहिम। आज हटाई गई रंगरेज गली इलाके से 2 बोसीदा इमारतें। नौमौलूद बच्चों के लिए माँ का दूध सबसे ज़्यादा होता है सेहत बख्श। दूध पिलाने के मौजू पर नर्सिंग स्टाफ की तरबियत के लिए खुसूसी वर्कशॉप मुनक़िद। माहिरीन ने की उनकी रहनुमाई। नायब वज़ीर आला सुनीत्रा पवार से मुताल्लिक़ कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर के मुतनाज़ा बयान पर एनसीपी के अहदेदारान व वर्कर्स में बढ़ने लगा है गुस्सा। जालना शहर में पार्टी वर्कर्स ने किया एहतजाज।
اور برسائے ہرش وردھن سپکاڑ کی تصویر پر جوتے۔ اور جائکواڑی ڈیم میں پانی کے ذخیرے میں ہو رہا ہے مسلسل اضافہ، گزشتہ شام تک ذخیرہ ہو گیا 90%۔ منگل کی شام ڈیم کے 18 دروازے کھول دیے گئے آدھا فٹ۔ تالاب کے اطراف رہنے والوں سے چوکس رہنے کی گئی اپیل۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔